Namaskar, Assalamualaikum, Sri Akal. My name is Dr. Sagar Chaudhary and I welcome you on my YouTube channel Dr. Sagar Chaudhary. And if you are watching me on my Facebook page, Dental Gains or Sagar Chakshugi, I welcome you here. So as I promised that we are going to start a series and we are going to meet new people, people who are successful in dentistry or in life, and we are going to talk to them. We are going to know their Guru Mantra for that. So today we have someone who I admire a lot, someone who I met 5 years back. 5 साल पहले मैं मिला था एक लेक्चर में उनसे. तब से is my friend, my mentor. Every step I take, I try to take advice from him. He is one of the finest hand in endo in Ghaziabad. He is speaker for Colgate. He is speaker for Dentsply. So I welcome Dr. Vaibhav Garg here with us. Welcome, sir. Please. Thank you so much for sparing time for this. We were planning this from very long time, and he is the person जिन्होंने मुझे idea दिया to reach up to you guys. So sir, all up to you. Firstly, thank you very much for everything you did for me. I cannot explain it in words, so I'll not waste much time. I'll ask sir to tell us everything about his story. So sir, all up to you. Okay, so I'm Vaibhav Garg, and first of all, big-hearted congratulations to Sagar for achieving 10,000 benchmark of followers at Facebook and more than 5,000 followers and subscribers on YouTube channel. This is our first time that we are talking to the audience, so a big congratulations to the audience and a warm welcome to all of them. So the intent today was let's give out some small points to the fellow audience and make a very small difference in their lives, if at all, whatever we have gained in our lives, and we can give it to them. So Sagar, you can start with what the main intent actually is to remove the negativity, sir. Because he's the most positive person I have ever met, and we are seeking for such people in dentistry that who can guide us in a positive manner. Everybody is speaking negative, even our teachers are, about dentistry कि हर जगह क्लिनिक हैं और इसको छोड़ दो या MDS के बिना कुछ नहीं हो पाएगा, and so many things. So I thought that I should start with the most positive person ever. So sir, my question will be very straightforward. Everybody wants that answer, but nobody is clear about it. That is that how do you have to start basically कि आपको शुरू कैसे करना है अपने सपनों को देखना ही शुरू कैसे करना है, पूरा तो बहुत दूर की बात है, स्टार्ट कैसे करनी है, व्हाट इज द मेन पाथ? Okay, I have a very limited experience in dentistry. My clinic just started 5 years back, and a lot of experience in 5 years. But thank you so much. What actually we want to talk about is like how to seek a dream and how to realize it and make it a reality. Yes. So all of my teachers have told me all my life, all my teachers, this is not Vaibhav Garg that is speaking to you, or whatever words I am giving or delivering today are actually the real gyan that is given to me by my teachers, my gurus, and they have been supporting me through all this time. So what we say is realization of dreams is only one word, that is hard work. It is not 2 words, it's hard work, it's together. If you're not putting your hard work, you might not ever realize your dreams. So the shortest distance between the dreams and reality is hard work. Right. Give your 100% on that. True. Give your 100%. True. So but the thing is, as you said that it is hard work and so many people are trying to do that, but मेरे पास जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं सब लोगों के, स्पेशली यंगस्टर्स के, वो ये आते हैं कि हम हार्ड वर्क तो तब करेंगे जब हमें रियलाइज हो कि हमें करना क्या है. बिकॉज आफ्टर BDS, आफ्टर डेंटिस्ट्री, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, एम्पल ऑफ ऑप्शंस. MDS है, बाहर जाना है, MDS है तो किस में MDS करनी है, किस कॉलेज से करनी है, नीट देना है या बाहर जाने के लिए हमारी कितनी लीगल, बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूज्ड हैं. पीपल आर रियली कंफ्यूज्ड. सो दे वांट टू नो कि ड्रीम को पहले डिसाइड कैसे करें कि हमें करना क्या है. ज़्यादातर क्वेश्चन यही आते हैं कि सर हम करें क्या. कोई क्लिनिक खोल के बैठा है तो वो परेशान है कि MDS कर लूँ क्या. जो MDS कर रहा है वो सोच रहा है कि सर क्या क्लिनिक चलेगा नहीं चलेगा. सो हाउ टू क्लियर दिस थॉट कि हाउ टू रियलाइज कि व्हाट इज देयर ड्रीम. Okay, so
आई गेस आज की जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा मेच्योर है. उनको ये पता है कि मेरा पैशन किस में लाई करता है. ज़्यादा अगर हेल्प चाहिए तो यूट्यूब पे 1000 वीडियोस के ऊपर हैं जो आपको डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि आपका पैशन क्या है. आपका टैलेंट और आपका पैशन उसके बीच में एक बहुत थिन लाइन होती है. तो पैशन को कैसे डेवलप करना है या कैसे सीख करना है. मैं एक छोटा सा तरीका मानता हूँ कि पैशन वो हुनर है आपके अंदर जिसके लिए आपको ना नींद नहीं आती. मतलब अगर रात को बहुत लेट नाइट आप कितने भी थके हुए हैं बट समबडी आस्क यू फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग यू विल बी हैप्पीली डूइंग इट. दूसरा, अगर पैशन के लिए पैसे नहीं भी मिलते हैं ना, पैशन अगर हम परस्यू कर रहे होते हैं और हमें उसके लिए कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है, चाहे फाइनेंशियल रिवॉर्ड हो या कुछ भी रिवॉर्ड हो, वी स्टिल डू इट होल हार्टेडली. वो चीज़ पैशन की डेफिनेशन के अंदर आती है मेरे लिए कि जब हमें पढ़ाना है, मैं बीइंग एन एजुकेटर आई टीच पीपल. और कभी कभी ऑगस्ट गैदरिंग होती है करीब 25 लोगों की, 30 लोगों की, एंड दे ऑल हैव देयर क्वेश्चंस रिगार्डिंग डेंटिस्ट्री. जब हम पूछ रहे होते हैं, सवाल पूछ रहे होते हैं, तो मुझे इस बात का जवाब नहीं देना होता कि मैं ये जवाब दूंगा तो ये इसका रिप्लाई आएगा और इसका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा. मेरे को लगता है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है मैंने उसको बंडल अप किया और जो मेरा जो क्वेश्चन जो सीख कर रहा है, जो आंसर सीख कर रहा है, उस बंदे को वो आंसर दूँ अपने पैशन से निकाल के कि उसको शॉर्टेस्ट लगे, उसके लिए बहुत छोटा हो जाए वो, कि लगे कि ये तो इतना सिंपल सा आंसर था, इट कुड हैव बीन लाइक वेरी इजी थिंग. सो एज एन एजुकेटर व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माय टीचर्स इज एजुकेशन में कोई भी चीज़ सिखा रहे हो आप तो उस कॉन्सेप्ट को सिंपलर कर दो. और मेरा पैशन ही उसी में है तो मैं पैशन को वहाँ से डिसाइड करता हूँ. Right. So as sir said, and I also talked to you guys about this कि passion is something, जैसे sir की definition was the amazing one कि जिसमें नींद ना आए आपको थकावट ना हो, आपको खुशी मिले उस चीज़ को करने में, बिना इस चीज़ को जाने कि उसका रिजल्ट क्या होगा, उससे आपको कितना फायदा होगा या नहीं होगा, इस चीज़ को बिना जाने आप कर रहे हैं, सरेंडो करते हैं. मैं स्पीकिंग करता हूँ, मुझे उससे पैसा आएगा नहीं आएगा, दैट मैटर्स यस, बट बाद में पहले ये कि मुझे उस चीज़ से हैप्पीनेस मिले. सर ये चीज़ क्लियर हो गई कि ओके हाउ टू डिसाइड द पैशन. बट कई ऐसे भी लोग हैं जो पैशन की तरफ गए हैं और जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने क्लिनिक खोला तो किसी ने एमडीएस करी, अब उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि उसका नेक्स्ट लेवल पे कैसे पहुंचे. दे आर स्टक कि उसी लेवल पे स्टेगनेंट हो गए. तो हाउ टू इवॉल्व फ्रॉम दैट कि क्लिनिक को ग्रो या एमडीएस के बाद क्या उस पे कैसे उसको सॉल्व करें, वो प्लीज वो आप बताइए. ओके सागर, आई एम श्योर कि सबको फेसबुक के बारे में पता है. जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फेसबुक के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू, ये सब लोग जानते हैं कि यूट्यूब कैसे बना था या फेसबुक कैसे बना था. दे वर ए टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट व्हेन दे वर कंसीव्ड. जब ये बनाए गए थे प्रोडक्ट्स तो बहुत ही डिफरेंट ऑडियंस थी और पर्पस बहुत डिफरेंट था. बट ओवर अ पीरियड ऑफ लाइक 10 years or 15 years वट एवर जर्नी यूट्यूब एंड फेसबुक हैज बीन थ्रू, यू नो यूट्यूब का कंटेंट इतना ज्यादा हो गया कि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मिनट्स में उसका कंटेंट है. फेसबुक के पास शायद अब जितने भी स्मार्टफोन यूजर्स हैं उन सबकी ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन उनके पास है. दे कैन ट्रैक यू डाउन टू अ सिंगल सेंटीमीटर ऑफ लाइफ. सो व्हाट आई से इज, जो आज आप हो और आप 10 साल बाद जो बन जाओगे वो आपको सिर्फ इवॉल्व होना है उसमें. आपको अपना पैशन, अगर आपने अपना क्लिनिक खोला है, जैसे सागर ने मुझे पूछा कि क्लिनिक खोला है और करना क्या है, ये खो जाते हैं हम लोग. तो अगर हमें क्लिनिक खोल लिया है और एक डेंटिस्ट्री का एक पर्टिकुलर सेगमेंट है जिसमें मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा है, चाहे डॉक्यूमेंटेशन हो गया, जैसे हमारे पास बहुत अच्छे फोटोग्राफर्स हैं जो डेंटिस्ट हैं बाय एजुकेशन बट दे आर वर्ल्ड क्लास फोटोग्राफर्स. दूसरा आप इम्प्लांटोलॉजी है, रेस्टोरेशंस हैं, सो यू एक्सट्रैक्शंस हैं, सर्जरीज हैं, ऑन्कोलॉजी है, सो मेनी ब्रांचेस आर देयर. यू डिसाइड कि आपको किस में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है. अगर वो चीज़ आता है तो उसमें अपने आप को फिनिश लेके आइए अपने काम में, अपने हाथ में और हुनर बढ़ाइए, अपना स्किल सेट बढ़ाइए. पहले बहुत कम लेक्चर्स होते थे, बहुत कम स्पीकर्स आते थे. अब तो ऑनलाइन इतना कंटेंट अवेलेबल हो जाता है, सारे स्पीकर्स यूजली अवेलेबल हैं ईमेल के थ्रू या वेबसाइट्स के थ्रू. यू कैन एक्चुअली डायरेक्टली टॉक टू दैम. सो इफ यू रियली वांट टू इम्प्रूव योर स्किल सेट, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, और आपको किस स्टेज तक जाना है. उसको आप हमेशा फाइनेंसेस से जोड़ोगे तो कभी भी आप अपना रिजल्ट नहीं पा पाओगे. आपको ये देखना है कि आपका हुनर किस लेवल पे जा सकता है, किस एपिटोन को अचीव कर सकता है. आपको वो चीज़ देखनी चाहिए. आई गेस आपको आंसर मिल जाएगा आपका इस चीज़ में. राइट सर. सो फाइनली द मेन कोर क्वेश्चन जो हम हर स्पीकर से पूछते हैं,
that what would be your guru mantra for anyone who is doing anything in dentistry, who is trying, who is hustling up, डेंटिस्ट्री में हो या आउटसाइड डेंटिस्ट्री में हो, स्पेसिफिकली इन डेंटिस्ट्री, कि लास्ट में एक ऐसी चीज जो आपको लगता है, जो आपने फॉलो करी है, आपने सीखी है, और आपको लगता है कि एवरीवन हैव टू फॉलो दिस इन ऑर्डर टू बी ए गुड सक्सेसफुल डेंटिस्ट और पर्सन इन लाइफ. ओके, जैसे मैथमेटिक्स में फॉर्मूलाज होते हैं ना, तो हम जब मैंने पहली बार ये कॉन्सेप्ट सुना था तो मेरे को बहुत इजी लगा. और अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए. कोई चीज़ का ईज जो होता है किसी कॉन्सेप्ट का, अगर हम उसको डेली बेसिस पे लगाएं तो शायद हमें अपने आप को गेज करना आसान हो जाता है, क्योंकि हम जितने अच्छे से अपने आप को जानते हैं कोई और हमें नहीं जानता. तो एक बहुत कॉमन फॉर्मूला है जो प्रैक्टिस मैनेजमेंट में सिखाया जाता है, उसे कहते हैं ABCDE. दैट्स इट. तो ABCD फॉर्मूला, इट इज़ माई usual method of teaching to most of the crowds and audiences that I have met over a period of like past 4 years, 5 years. So ABCD को थोड़ा सा एक्सपैंड करता हूँ आप लोगों के लिए. हो सकता है आप लोगों के लिए आसान हो जाए, समझने की कोशिश कीजिएगा. ये मेरे लिए आसान है, हो सकता है आप लोगों की लाइफ में अगर 10% भी चेंज आ जाएगा तो होपफुली दिस मैथमेटिकल फॉर्मूला विल हेल्प यू. सो A stands for availability. Availability means अगर मेरे क्लिनिक का कुछ टाइम मैंने स्टैंडर्डाइज रखा है, या मैं कहीं जॉब करता हूँ और वहाँ पे अटेंडेंस लगाने का एक पर्टिकुलर टाइम है, सो आई शुड नॉट बी लेट. आई कैन रीच 5 minutes अर्लियर. आई कैन सी टू माई स्टाफ, आई कैन सी इफ क्लीनलीनेस इज ओवर, hygiene thing is there, my first patient is already scheduled or not. So if we consider like 10:30 is my clinic time or 11 o'clock is my clinic time, I should reach just 5 minutes earlier to it, or at least at 10 o'clock or 10:30. So I should reach on time, and my availability should always be there in my clinic or my job. See, if my patient is walking in and then they see that the doctor is not there, mostly they will, because dentistry में एक खास बात है कि आपका सारा relationship 1-to-1 है patient के साथ. हम बहुत masses को treat नहीं करते हैं, हम individual relationships में patient के साथ treat करते हैं. बहुत ही close relationship होता है, because जो surgeon है या जो dentist है वो 1-on-1 treat कर रहा है patient को. तो mostly लोग patients कहते हैं कि जब डॉक्टर साहब आ जाएंगे मैं तभी आऊँगा, चाहे आपका क्लिनिक खुला या नहीं खुला. तो आपकी पर्सनल अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंड आता है बिहेवियर. कहते हैं कि आपका व्यवहार है तो व्यापार है. हाँ, अगर मेरा पेशेंट बहुत अच्छे से बात कर रहा है या गुस्से में है या कोई भी रीज़न है, उनके बात करने का कोई भी लहजा हो सकता है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, बट अगर मेरा बिहेवियर सॉफ्ट नहीं है और मैं उनको अच्छे से ट्रीट नहीं कर सकता हूँ, बात करने में अगर मैं अच्छे से ठीक से बात नहीं कर सकता हूँ, तो आई विल लूज दैट रिलेशनशिप फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ. और कमिंग टू सी इज कॉम्पिटेंस इज द रियल वर्ड. कॉम्पिटेंस मतलब अगर मैं क्लिनिक में तो हूँ, मेरा बिहेवियर भी अच्छा है, बट जो ट्रीटमेंट मुझे करना है या मेरा पेशेंट सीख कर रहा है, मैं उसको वो दे नहीं सकता ट्रीटमेंट, कॉम्पिटेंस नहीं है मेरे पास, तो इट विल नॉट बी हेल्पफुल टू यू. कि मैंने रख तो लिया कि इम्प्लांट का पेशेंट है, या मैंने रख लिया फुल माउथ रिहैब का पेशेंट है, या क्राउन ब्रिज का प्रिपरेशन का, या सीडी का पेशेंट रखा क्लिनिक में, पेशेंट को चार्जेस हमने डिस्कस कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट मुझे काम ही नहीं आता है, तो इट विल नॉट हेल्प. I can outsource, I can take help from people, I can take help from my seniors, from my consultants. And usually in bigger clinics, when the larger number of population is treated, and consultants are usually helpful. They come across with all their knowledge and their expertise, and they help the patients to get treated in the right way. हीरोडोंटिक्स नहीं करनी है बेसिकली. मतलब जहाँ आपको आता है डू इट, जो नहीं आता है टेक हेल्प. राइट, ऑब्वियसली मतलब जहाँ मैं अपने रोक सकता हूँ अपने आप को कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, आई शुड ऑलवेज सीक हेल्प फ्रॉम एन एक्सपर्ट. फॉलोड बाय डी, आई टेक इट एज डेडिकेशन. डेडिकेशन मतलब मेरी अवेलेबिलिटी तो है और मेरा बिहेवियर भी अच्छा है, मेरी कॉम्पिटेंस भी, मुझे काम भी आता है, बट डेडिकेटेड नहीं हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा उस काम में, तो आई विल नॉट बी सक्सेसफुल इन दैट. Coming to E is economy. I'll just take these 5 first letters. So alphabets. So I'll say E is economy. अगर मैं किसी जोन में काम कर रहा हूँ तो उसके डेमोग्राफिक्स के हिसाब से, वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से मेरा ट्रीटमेंट इकोनॉमिकल होना चाहिए या अफोर्डेबल होना चाहिए. इट हैज़ टू बी देयर. अगर मान के चलिए मैं बहुत अच्छी जगह पे बैठा हूँ, बहुत पॉश एरिया में बैठा हूँ, और मेरे चार्जेस स्काई रॉकेटिंग है, बहुत ज़्यादा हैं,
So I might lose on a larger number of population. I'll be able to serve only a very limited population. Matlab, out of 100, I'll be treating only 5 or 6 patients who will accept my treatment because of the charges. Yes. So it has to be according to the economy of the patient. The patient should feel affordable. That treatment is, yes, affordable for me. I'm not talking about discounts here at all, but affordability. Please see to it according to your own areas, because right now we are sitting in Ghaziabad, UP, but demographics of Delhi, South Ex will be different, Mumbai will be different, Chennai will be different, and across the world different cities have different economical zones. So just look into it. And somehow if you don't follow A, B, C, D or E, end result, I should not use that word, but you are actually going towards failure. Don't go towards failure. Failure can be treated if you are already feeling failure or you are facing failure right now. Go back to this A, B, C, D, E mathematical thing, and this formula might just boost you up. Okay, so I hope this should help. This will definitely. The most interesting part I felt was the economic thing, because most of you asked me that किस तरीके से चार्जेस रखें अपने. तो इसका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट सर का पॉइंट पे जाता है, जिससे मैंने भी सीखा है कि ज़रूरी नहीं है कि आप 4,000 5,000 की रूट कैनाल्स करें. अपने इकोनॉमिक एरियाज के हिसाब से नीड टू डू गुड वर्क, यस, बट इतना नीचे नहीं जाना है, पर बहुत ऊपर भी नहीं. अपने इकोनॉमिक एरियाज को देखते हुए उस पॉइंट को ध्यान में रखना है. So sir, thank you so much for your time. We learned A, B, C, D, E, formula, and this is something which will create magic in your life if you will apply it very nicely in your life. We'll come back with another eminent speaker like Vaibhav sir, who have achieved something in dentistry, something in life. Till then, thank you so much for your time. Anytime you want any help from me, even sir, because I message him anytime, right? You can also do that. Right, so I'm sharing my number only. I can give you his, and anytime he will be happy to help, because I always say successful people help each other. That is why we are here for you, creating this video for you. So thank you guys. Thank you for subscriptions on my YouTube channel and on my Facebook page. Thank you so much for 10,000 followers. My number is 9873351158. It will be mentioned. Ping me anytime you want. I'll definitely reply. Maybe late, but I'll definitely reply. Thank you so much, guys. Love you all. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Pleasure.